स्ट्रक्चर हम पढ़े हमारा स्टडी फ्लो, ठीक है। कन्फाइंड एक्यूफर में क्या होता है, कन्फाइंड एक्यूफर क्या होता है, जिसमें हमारा कन्फाइनमेंट रहता है लेयर्स का, ओके। इसमें कुछ हमारी इम्परमिएबल लेयर रहती हैं, उनका कन्फाइनमेंट रहता है परमिएबल जो हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रेटा होता है उसके सराउंडिंग में, ओके। तो हमने क्या किया, कंसिडर केस, एक केस कंसिडर करते हैं जिसमें हमारा जो पंप है वो क्या है, कंप्लीटली पेनिट्रेटिंग है एक कन्फाइंड एक्यूफर में। स्टडी स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो पीजोमेट्रिक है उसका ड्रॉ डाउन जो है, ड्रॉ डाउन सरफेस वो दिखाई गई है इस फिगर में। क्या किया हमने, एज्यूम किया है कि कांस्टेंट हम डिस्चार्ज निकाल रहे हैं, यहाँ से जो हम वाटर निकाल रहे हैं वो कांस्टेंट है, ठीक है। पम्प्ड डिस्चार्ज निकाला जा रहा है क्यू। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं वेल के लिए कि डिस्चार्ज जो निकाल रहे हैं वो क्यू निकाल रहे हैं, जो वेल का रेडियस है वो आर डब्ल्यू है, जो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है वो कैपिटल आर है। व्हाट डू यू मीन बाय द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, इट इज द रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वेल, जहां हमने अपनी वेल बनाई है, ठीक है, जहां हमने अपना कुआं बनाया है वहां से लेके उसके सेंटर से लेके जहां पर हमारा जो ड्रॉ डाउन कर्व होता है वो उस लेवल पर आ जाए जो वाटर लेवल हो, ओके। या फिर जो हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाए वाटर लेवल, जिधर हमारा वाटर लेवल हॉरिजॉन्टल होना स्टार्ट हो जाए उस तक का डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। दैट मीन्स इतने पोर्शन में इन्फ्लुएंस है इस कर्व का, इस ड्रॉ डाउन कर्व का, ओके। या फिर कह सकते हैं कोनिकल डिप्रेशन का, राइट। तो देन height from the datum to the piezometric surface, datum to the piezometric surface where the water level is horizontal is capital H, nearly equal to the original undisturbed water H, ठीक है। that means here is the water is undisturbed, there is no influence here, up to the influence there is a radius of r that is known as radius of influence, okay। depth of water well HW, this is the depth of water well in well at which the water, okay, what is the depth of the water in the well, that is HW at the certain radius r, we are talking about here this r, measure from the center of the well, piezometric surface is stand at the height of h, और यहाँ पे जो हमारा piezometric का लेवल है, वाटर लेवल है वो h है, ओके। यील्ड्स क्या मिलती है हमको q, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ अ डार्सी लॉ। व्हाट द डार्सी लॉ सेज दैट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, that is hydraulic gradient, okay। तो Q equals to here V can write V as V is equals to here K is a constant and I, and we can write Q equals to AV, so that we can write V equals to Q by A. From here we can find out this equation Q equals to KIA, okay। So what is I here, I is a hydraulic gradient. What is hydraulic gradient, is it the, it is a change in the depth, change in the head of the water with respect to the length, okay। So I equals to dH upon dr, dH is a change in the head or change in the water level head divided by the in which distance, okay, with respect to distance we can say। So R equals to RW, here A is, what is A, surface area of well, ठीक है। So how we can write this value of A is equals to, what is the perimeter of this, 2 pi RW, RW, because this is the radius of the well, this is a well, okay। So circumference is equals to 2 pi RW and the height is B, so B, this comes out the total area of the well, okay। Why we taking B here, because it is a confined aquifer and the depth of the confinement is B, okay, the thickness of the aquifer, sorry, depth of confinement, it is not a depth of confinement, it is the thickness of aquifer। After that, naturally some amount of water also travels through the aquifer, so we can also write in the form of this, if we are talking about a radius r at a particular distance r, so we can write the equation is Q equals to K dH upon dr 2 pi RB, okay। If we integrate this equation from RW to R1, from RW to R1, okay, so we can write it in this form,
here we take dr from the another side and ds from this side, and we can integrate here. So we get this equation, h1 minus h2 equals to q k 2 pi rb. Okay, 2 pi rb, and here is r and dr. When we integrate this, we can get ln r1 upon rw. Okay, this equilibrium equation can be used to determine the variation of the piezometric head radially outward from the well. So this is known as drawdown S. ड्रॉडाउन मीन्स कितना हमारा डाउन हो गया है वाटर लेवल, पहले इनिशियल पोजीशन पे था, अब इस पोजीशन पे अगर हम देख रहे हैं तो हमारा कितना डाउन हो गया है वाटर लेवल. ओके, तो कितना डाउन हो गया एस. तो एस को हम कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल एच माइनस h1, तो हमारा एस मिल जाएगा हमको. इसकी फॉर्म में अगर हम लिखें तो हम इसकी फॉर्म लिख सकते हैं क्यू 2 पाई टी एल एन कैपिटल आर अपॉन r1. देखो यहाँ से क्या किया, पहले ये इक्वेशन आई थी हमारी h1 में और हमारी HW में, दैट मीन्स इसके और इसके बीच का इक्वेशन था. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसके और इसके बीच का इक्वेशन निकाल रहे हैं. तो हम सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने h1 की जगह अब की बार क्या ले लिया है, हमने हमारा कैपिटल H ले लिया है, और जो हमारा HW था वो हमने h1 ले लिया. ठीक है, और हमने ऐसे अपनी इक्वेशन लिख दी. यहाँ r1 की जगह क्या ले लिया हमने अपना यहाँ ले लिया है कैपिटल आर, और r1 की जगह rw की जगह हमने ले लिया हमारा r1. ओके, ये हमारा r1 है और ये हो गया हमारा कैपिटल R. सो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, अगर हम 2 पीजोमीटर इंसर्ट कर रहे हैं, 2 टेस्ट वॉल है हमारी, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, और हम यहाँ से हमारी परमिएबिलिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि हमारी परमिएबिलिटी कितनी होती है. ओके, यही हमारी क्या होती है, ड्रॉ डाउन का डिफरेंस होता है. ठीक है, तो ये हमारा एस है, यहीं से हमारी वाली इक्वेशन आई है क्यू 2 पाई एस. एस ये हो गया. ठीक है, ln r2 अपॉन r1. यहाँ से देखें इसको, चाहे यहाँ से ही कंप्यूट कर सकते हैं इसको. टी निकालना है. टी क्या होती है, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ एक्यूफर. ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ एक्यूफर क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी इनटू कितनी डेप्थ है हमारी एक्यूफर की. ठीक है, कितनी थिकनेस है एक्यूफर की, उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमारी आती है ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ एक्यूफर. तो ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ एक्यूफर की फॉर्म में हम ऐसे निकाल सकते हैं इसको. बस इस चीज़ को हम यहाँ पे ले आए, इसको उधर ले गए, और ये क्या होता है हमारा ड्रॉडाउन, उसको हमने एस लिख दिया. ठीक है, सिमिलर हमने यहाँ पे किया है. अब की बार हमने एस को h2 माइनस h1 की फॉर्म में लिख लिया. इसको हमने एस को कैसे लिखा, ये हमारा एस था. ठीक है, यहाँ पे एक टेस्टिंग वॉल होगी h2 करके, तो h2 माइनस h1 करके हमने लिख लिया हमारा एस ड्रॉडाउन उसके लिए. तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस मेथड से हम परमिएबिलिटी निकाल सकते हैं किसी भी एक्यूफर की. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थीम्स मेथड बोलते हैं इस मेथड को, जिसमें हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, और जब हम एक टेस्ट ट्यूब पे वर्क करेंगे तो उसको ड्यूपिट बोलते हैं. अभी देखते हैं हम स्टडी फ्लो अनकन्फाइंड एक्यूफर में क्या होगा. अनकन्फाइंड एक्यूफर में हमें HW ही लेना है, हमारी पूरी हाइट हमको लेनी है ना, यहाँ तक की हाइट है, तो हमको हमारी पूरी h हाइट पूरी लेनी है. हमें यहाँ पे बी नहीं कंसिडर करना. तो डिस्चार्ज क्या होगा यहाँ पे, ए एरिया. ठीक है, कितना होता है एरिया, और Q इंटू आई. Q इक्वल्स होता है के आई ए. ओके, आई को क्या है लिखा हमने यहाँ पे, डी एच अपॉन डी आर. ए क्या है हमारे यहाँ पे 2 पाई आर, यो कि हमारा सरकमफेरेंस, और हाइट हो जाएगी हमारी यहाँ h1, क्योंकि हम r1 पे बात कर रहे हैं, h1. ठीक है, डी एच अपॉन डी आर इंटू आर, या फिर हम इसको सिंपल h लिख सकते हैं. अगर हम सिंपल ये लिख रहे हैं ना, सिंपल आर पे, तो हम यहाँ पे सिर्फ h लिख सकते हैं. ओके, फिर क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया. h हमने इंटीग्रेट किया यहाँ से RW से लेके R तक. ठीक है, अगर हम किसी रेडियस R की बात करें तो वहाँ पे ये इसको बोल सकते हैं R1 H1. ओके, यहाँ पे सिंपल h. तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, h1 माइनस h ये है. ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो इसका स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारी ये वाली वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा यहाँ पे. ओके,
तो H1 का स्क्वायर माइनस HW का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू Q अपॉन पाई के ln R1 अपॉन RW। तो इससे हमारी वाली क्वेश्चन आती है। थैंक यू सो मच।